Students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Audio Biology. Today we are going to discuss the sixth topic of our series of lecture. That's we are starting here the chapter जिसका नाम है Body Fluids and Circulation. Today we are going to discuss the clotting factors. ठीक है ना? We have the 13 clotting factors. Important to remember how many clotting factors. There are 13 clotting factors present in an organism. ठीक है ना? होता क्या है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स में, इनके लिए ये 13 फैक्टर्स हैं, इनकी जो फंक्शन वो हम आगे देखेंगे. पहले हम देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन है और हम देखते हैं फिर इसे रिमेंबर करने के लिए कुछ फार्मूला है वो भी देख लेते हैं. ठीक है ना. द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट दैट इज फिब्रिनोजिन. फिब्रिनोजिन इज द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर. इट इज सिंथेसिस इन लिवर. ठीक है ना. ये लिवर में बनता है. ऑल्सो vitamin K. Vitamin K is the vitamin which is responsible for the formation of fibrinogen. If the vitamin K is absent in liver, means then the fibrinogen process will reduce. Fibrinogen की जो है concentration decrease होगी. The second one is prothrombin. The third one is tissue thromboplastin. Tissue thromboplastin is secreted, released after tissue injury. Clotting factor third, that's tissue thromboplastin, is released whenever the injury occurs in tissue or platelets. ठीक है ना. Clotting factor 4 is calcium ions. Calcium ion activates the thrombin. We will see it in Kasdaq process जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इनकी फंक्शन. The fifth one is Leibel factor. It's also synthesized in liver. The sixth one is Axelrine. It's also called the hypothetical factor. Why factor sixth is called the hypothetical factor? Because it's hypothetical. इसका कोई नाम अभी नहीं है एंड इसकी जो अभी साइंटिस्ट ने इनकी कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं देखे. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द हाइपोथेटिकल एक्सेलरेन, बट इट्स बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन एन organism and responsible for the clotting. The seventh one is stable factor. It's also synthesized in liver. The eighth one is that's anti-hemophilic factor. It's also known as anti-hemophilic A. आपको मालूम होगा, आपने आप पढ़ा होगा, हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया इज अ डिजीज जिसमें थोड़ा भी कट हो, क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8th जो है वो एब्सेंट होता है. ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 8th व्हाट हैपन, हीमोफीलिया में क्या होता है, व्हेन द लिटिल वुंड और इंजुरी ऑकर्स द ब्लीडिंग ऑकर्स. बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है. क्यों? फैक्टर 8 जो है गायब रहता है, एब्सेंट रहता है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एंटी हीमोफिलिक ए. हीमोफिलिया आपको पता है इट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें मेल्स ज्यादा इफेक्ट होते हैं. एक्स क्रोमोसोम इज रिसेसिव क्रोमोसोम, सो इट्स सेक्स लिंक्ड एक्स रिसेसिव क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ठीक है. दैट्स फैक्टर 9th. इट्स नोन एज क्रिसमस फैक्टर और इट्स नोन एज एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर. आपको पता है हीमोफिलिया बी जो होता है, दिस ऑकर्स टू ड्यू टू दिस प्रोटीन एंड दिस आल्सो नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपाउंड. दैट्स पीटीसी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपाउंड. द 9th factor is Stewart factor, Stewart power factor. It's also synthesized in liver. The 11th factor is that is plasma thromboplastin. Plasma thromboplastin antecedent. It's also known as PTC. ठीक है ना. या इसे हम क्या कहते हैं, एंटी हीमोफिलिक सी. आपको जो पता है हीमोफिलिया सी होता है, हीमोफिलिया सी ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11. ठीक है ना. इसे हम क्या कहते हैं, PTA. That's plasma thromboplastin antecedent. Now we have the another clotting factor, that's clotting factor 12. That's Hagman's or Gauss factor. ठीक है ना. Factor 12 is known as Hagman's factor or Gauss factor. Factor 13th is fibrin stabilizing factor और इसे हम क्या कहते हैं, Loki-Lorentz factor. Factor 13th is known as fibrin stabilizing factor or Loki-Lorentz factor.
सो हियर वी हैव द फॉर्मूला जिसकी वजह से हम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स इजी से रिमेंबर कर सकते हैं. दैट दिस इज फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस सम पीपल हैव फॉलन. Foolish stands for fibrinogen and people stands for prothrombin. Tri means tissue thromboplastin and the climbing means calcium ion and the long means Lieber factor and फैक्ट 6 तो मैंने बोला हाइपोथेटिकल है, इसके लिए कोई भी नहीं है, आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हो. फिर है स्लोप्स मीन्स स्टेबल फैक्टर, आफ्टर मीन्स एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर. सम मीन्स स्टोर्ड फैक्टर, स्टोर्ड पावर फैक्टर. पीपल मीन्स प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटी हीमोफिलिक सी फैक्टर. हैव स्टैंड्स फॉर हैगमैन्स फैक्टर and or Gloss factor. Have is simply here Hagman's factor, and the fallen means fibrinogen stabilizing factor. This was the whole about the clotting factors. अब हम clotting factors के बाद देखते हैं कैस्डेक प्रोसेस जो होती है, clotting जो है वो कैसे होती है. Now we are going to discuss the another topic blood clotting का, जिसका नाम है blood coagulation. So what's blood coagulation or blood clotting? ठीक है ना, ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है. पहले हम देखते हैं, सपोज दिस इज ए टिश्यू. क्या है, एक टिश्यू है. सपोज समटाइम्स व्हाट हैपन्स, सपोज ए टिश्यू. नाउ सपोज दिस इज टिश्यू. व्हेनेवर इंजुरी और ट्रॉमा occurs a cut. So what happens? Suppose ये टिश्यू है, इस पर कोई कट लग गया. Suppose this tissue gets ruptured or this gets injured from here. So यहां पर कट लग गया. So टिश्यू में क्या था, यहां थी we have the RBCs, WBCs, platelets. So यहां भी सपोज प्लेटलेट्स थी. These gets injured, these gets cut. So what happens? This blood, that's plasma बहुत सारा कुछ होगा. This blood ooze out. आपने देखा होगा ये ब्लड फिर बाहर निकलता है. जब भी इंजुरी होती है, सपोज हाथ पे हो गई है, ब्लड बाहर निकलता है. But after some time, that's 4 to 6 minutes. Then after 4 or 6 minutes, what happens? The blood stops. The oozing of blood stops. Blood जो बाहर आ रहा था, यहां से WBCs, RBCs, platelets, they get naturally stopped after a while. That's after 4 or 6 minutes. Sometime more or less time भी हो सकता है, but mostly this is the clotting time. So क्या होगा, ये blood बाहर निकलता रहता है. Then what gets, यहां कुछ ऐसा बन जाता है, बहुत सारा आपने देखा होगा, कुछ नेटवर्क सा बन जाता है. ये नेटवर्क सा जब बन जाता है, then the blood oozing stops. That जो blood ooze हो रहा था बाहर, वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो यहां पर कुछ बन गया, इसे हम कहते हैं क्लॉट. क्या कहेंगे, क्लॉट. यहां पर क्लॉट बन गया. ठीक है ना. अब और इसे कहते हैं हम थ्रोम्बोस. ठीक है ना. या फिर क्या होगा, ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा. ठीक है ना. और जो इस क्लॉट को बनाएंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉटिंग प्रोसेस. दैट्स क्लॉटिंग. वो हम देखेंगे अब क्लॉटिंग. अब हम देखते हैं इस मैकेनिज्म में थोड़ा थोड़ा क्या होता है. ठीक है ना. ये आपको पहले मैंने अंडरस्टैंड किया व्हाट्स क्लॉटिंग. सो 13 फैक्टर्स हमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. द फर्स्ट स्टेप हियर इज फॉर्मेशन of thromboplastin activators. The first, that's the primary function here, is to formation of the thromboplastin, that's prothrombin activators. The primary function here is to formation of
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। ठीक है ना, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है यही सभी जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, फिर क्या है, क्लॉट बनेगा। लेकिन ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर जो है इट वर्क्स इन 2 स्टेप्स, दैट्स इट फॉर्म्स इन 2 स्टेप्स। फॉर्मेशन इसकी होगी 2 स्टेप्स, दैट्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। So the formation of prothrombin activators occurs in 2 pathways, that's extrinsic and intrinsic. It's multi-step. These are both multi-step processes. ठीक है ना, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसी मल्टी स्टेप प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज उसी को हम कहते हैं कैस्डाक प्रोसेस। वो हम लेटर देखेंगे। अब हम देखते हैं शॉर्ट में, पहले अगर मैं आपको बताऊं यहां पर क्या होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन में। सपोज अगेन मैंने आपको बताया था, वो हैव द टिश्यू व्हिच गेट्स रप्चर्ड और इंजर्ड और ट्रॉमा ऑकर्स। सपोज इंजर्ड टिश्यू, दिस इज इंजर्ड टिश्यू और इंजर्ड platelets. These injured tissues और platelets यहां पर मल्टी स्टेप होंगी। इस मल्टी स्टेप की वजह से क्या बन जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है जो बाकी ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। दीज आर इन एक्टिवेट इन आवर ब्लड। हमें पता है अगर हमारे ब्लड में वो एक्टिवेट हो जाएं तो अगर ब्लड जमा हो जाए बॉडी में इट लेट्स डिसऑर्डर्स। बट क्या होता है, दीज यूजुअली रिमेन्स इनएक्टिव, बट व्हेनेवर द इंजुरी और द tissue or the platelets gets injured, so what happens, this prothrombin activator gets released. Whenever the prothrombin activator gets released, it stimulates the activation of the other 13 factors. We will see how. दूसरी बात जो है, ये था फर्स्ट स्टेप। अगर हम सेकंड स्टेप देखें, सेकंड स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ prothrombin to thrombin। ठीक है ना, सपोज यू हैव प्रोथ्रोम्बिन, दिस प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। किसमें हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, मगर होगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, दैट इज दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और फैक्टर 4th, दैट्स कैल्शियम 2+2। हमने देखा था ये कौन सा फैक्टर था, इट वाज द 4th फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, दैट्स कैल्शियम। ठीक है ना, ये क्या था, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मैंने वहीं पर बताया था दिस फैक्टर 4th और कैल्शियम, इट्स अ थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने स्टिमुलेट किया, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गया, ये क्या होगा, एक्टिव। ठीक है ना, अब इसके बाद अब जो थर्ड स्टेप होगा, दैट्स लास्ट स्टेप। द लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू फिब्रिन। ठीक है ना, अब यहां पर क्या होगा, सपोज दिस फिब्रिनोजिन ये क्या ऑलवेज होता है, दिस soluble प्लाज्मा प्रोटीन। फिब्रिनोजिन इज soluble प्लाज्मा प्रोटीन। इस फिब्रिनोजिन की वजह से क्या होगा, फिब्रिनोजिन अब कन्वर्ट करना है हमें किसमें, फिब्रिन में। दिस फिब्रिनोजिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यू टू दिस दैट्स थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजिन इनटू द फिब्रिन। ठीक है ना, अब ये फिब्रिन जो बनेगा, दिस इज मोनोमर। ठीक है ना, दिस इज मोनोमर। एंड दूसरी जो इसके बारे में बात है, दैट इज इनसॉल्युबल फॉर्म, दैट्स इट्स इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। दिस फिब्रिन इज मोनोमर एंड इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है ना, अब इस फिब्रिन के बाद क्या होगा, ये अब बनाएगा, ये फिब्रिन क्या बनाएगा, फिब्रिन
नाउ दिस फिब्रिन गेट्स फॉर्म इनटू फिब्रिन पॉलीमर. सपोज एक पॉलीमर है, मोनोमर है, व्हेन द मल्टीपल मोनोमर यूनाइट्स, दैट्स एग्रीगेट्स, दे फॉर्म अ फिब्रिन पॉलीमर. यही फिब्रिन पॉलीमर जब इंजुरी साइड पर ऐसे जमा हो जाएगा देन क्लॉट बन जाएगा. ठीक है ना. इसी क्लॉट को हम क्या कहते हैं, दैट्स थ्रोम्बोस. ठीक है ना, थ्रोम्बोस बन जाएगा. ठीक है ना. ये थ्रोम्बोस भी ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा. ठीक है ना. अब यही मोनोमर फिब्रिन बनता है. लेकिन अब ये प्रोसेस होती कैसे है, इट ऑकर्स इन टू स्टेप, दैट्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. लेट्स सी द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. यहां तक हमने क्या देखा था, यहां तक हमने देखा था ब्लड कोएगुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेटर. ठीक है ना. तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमने देखा था. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है. ठीक है ना. लेकिन वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो था वो एक्टिवेट होता था इन टू फॉर्म्स. द फर्स्ट वन वाज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. सो व्हाट्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. ठीक है ना. उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द कैस्डेक थ्योरी. Casdake theory was given by Macfarlane. It was a scientist whose name was Macfarlane and he gave the theory जिसका नाम है Casdake theory. Casdake means the something which occurs in multiple steps, that's multiple process. उसको हम कहते हैं Casdake. ठीक है ना. अब इसने क्या कहा, इसने सिंपली कहा there are 13 clotting factors which are responsible for the formation of blood, for the blood clotting. ठीक है ना. इसने कहा 13 clotting factor हैं which are responsible for blood clotting. अब कैस्डेक प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपली देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता कैसे. मैंने पहले ही बताया था मल्टी स्टेप प्रोसेस व्हिच ऑकर्स इन टू स्टेप, दैट्स एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज. दो पाथवेज में ये होती थी. फर्स्ट वी सी द एक्सट्रिंसिक पाथवे. द एक्सट्रिंसिक पाथवेज व्हेनेवर द एक्सट्रिंसिक, हमेशा याद रखना एक्स मींस वायला, एक्सट्रिंसिक व्हेनेवर द टिश्यू और प्लेटलेट्स, व्हेनेवर द टिश्यू और प्लेटलेट्स गेट्स इंजर्ड or trauma occurs to tissues or platelets, so what happens, tissue thrombin, कौन सा, tissue thrombin, that is factor third, tissue thrombin that's factor third gets released. ये कब रिलीज होगा, जब इंजर्ड टिश्यू होगा. ठीक है ना. यहाँ पर टिश्यू सपोज इंजर्ड हुआ तो फिर टिश्यू थ्रोम्बिन रिलीज होगा. टिश्यू थ्रोम्बिन दैट्स फैक्टर थर्ड. ये क्या करेगा, दिस टिश्यू थ्रोम्बिन एक्टिवेट, दैट्स इट फॉर्म्स द फैक्टर 10. ये क्या करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट 10 करेगा. मींस यहां पर अगर ये इनएक्टिवेट था, ये था इनएक्टिव, यहां पर ये होगा एक्टिव. टिश्यू थ्रोम्बिन क्या करेगा, सिंपली ये फैक्टर 10 को एक्टिव 10 में कन्वर्ट करेगा. और किसकी वजह से होगा ये, एक होगा टिश्यू थ्रोम्बिन दैट्स फैक्टर थर्ड एंड द फैक्टर 7th की साथ क्या होगा, इनएक्टिव फैक्टर 10 गेट्स कन्वर्ट इनटू दैट इज फैक्टर एक्टिव 10. ठीक है ना. टिश्यू थ्रोम्बिन दैट्स फैक्टर थर्ड और फैक्टर 7th, इसकी वजह से क्या होगा, इनएक्टिव फैक्टर 10th गेट्स कन्वर्ट इनटू एक्टिव फैक्टर 10. और किसकी वजह से होगा, यहां पर हमें और कौन लगेगा, दैट्स कैल्शियम, दैट्स फैक्टर 4th. ठीक है ना. दैट इज फैक्टर 4th. यहां पर फैक्टर 4th भी हमें इस्तेमाल में लगेगा, दैट्स कैल्शियम. इसकी वजह से भी ये एक्टिव 10 में हो जाएगा. ठीक है ना. अब क्या होगा, ये जो एक्टिव फैक्टर 10th है ये कन्वर्ट करेगा, ये बनाएगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये क्या बनाएगा, दिस फॉर्म्स दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसकी वजह से बनेगा, एक इसमें होगा फैक्टर 5th ये वाला, और क्या होगा फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5th की वजह से क्या बनेगा यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. दिस इनएक्टिव 10 व्हेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव 10, ये क्या करेगा, अलोंग विद फैक्टर 5th के साथ क्या करेगा, ये इट फॉर्म्स प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ये क्या बनाएगा, एक्टिव फैक्टर 10 एंड फैक्टर 5th, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा. ठीक है ना. दिस वाज द एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक मींस जब बाहर वाले टिश्यू और प्लेटलेट्स गेट्स इंजर्ड. ठीक है ना. सिंपली हमें क्या बना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इज सेम बिकॉज देयर डेस्टिनेशन इज सेम, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज सेम. इनका ऑब्जेक्टिव सेम है बिकॉज बोथ हैव टू सिंथेसिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. ठीक है ना.
अब इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक, बिकॉज सपोज दिस टिश्यू, हमने जब देखा था ब्लड कैपिलरीज, अगर हम देखें ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं और वेन्स और कैपिलरीज, इनमें क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ 3 लेयर्स, दैट्स ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। These are the 3 layers जिनका ये बना होता है। This tunica externa contains collagen. This tunica externa has the layer of collagen. ठीक है ना। इस कोलेजन की वजह से क्या होता है, जब whenever the अब यही ट्यूना एक्सटर्ना क्या होती है, जब ये कट होती है, इंजुरी होती है इसमें, सो व्हेन द ब्लड एक्सपोज टू कोलेजन, जब ब्लड अब कोलेजन के साथ मिलता है, ठीक है ना, कोलेजन जो होता है ब्लड वेसल में, इसकी वजह से क्या होता है, फैक्टर 12 क्या है, बन जाता है, ठीक है ना, एक्टिवेट हो जाता है। सो अगर ये इनएक्टिव होगा, सपोज दिस इज फैक्टर इनएक्टिव 12, दिस गेट्स एक्टिव, ये क्या बन जाएगा, एक्टिव। कैसे बन गया, जब भी ब्लड जो था, जब इंजुरी हुई, सो ब्लड ने जब टच किया कोलेजन के साथ, जो कि वेसल की एक्सटर्नल लेयर में प्रेजेंट था कोलेजन, इसकी वजह से क्या होगा, फैक्टर 12 क्या है, एक्टिवेट हो जाएगा। अब फैक्टर 12 क्या करेगा, ये फैक्टर 11th को, किसको, फैक्टर 11th को एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। सपोज अगर ये फैक्टर इनएक्टिव होगा 11th, यहां वाले सभी इनएक्टिव होंगे, यहां पर क्या बन जाएगा फिर, एक्टिव। 10th फैक्टर हमें यहां पर बन गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, दिस एक्टिव फैक्टर 11th एंड द फैक्टर 4th दैट्स कैल्शियम, इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से फैक्टर 9th इंटू गेट्स एक्टिव 9th, ये भी अब एक्टिव होगा, ठीक है ना। सपोज ये भी अगर इनएक्टिव हो, ये इनएक्टिव फैक्टर 9th कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट्स एक्टिव फैक्टर 9th में with the help of that is factor 11th and the factor 4 that's calcium, ठीक है ना। अब फैक्टर 9th जब एक्टिवेट हो जाता है, ये इनएक्टिवेट 10 फैक्टर को, दिस इज इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10, ये इनएक्टिवेटेड फैक्टर 10 को एक्टिव बना देता है। अब ये क्या होगा, एक्टिव। फैक्टर 10 क्या करेगा, फैक्टर 10 एक्टिव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 9th, मगर एक्टिव फैक्टर 9th एक्टिवेट करेगा किसको, इनएक्टिव फैक्टर 10 को, ये अब एक्टिव हो गया, ठीक है ना। अब ये इनएक्टिव फैक्टर 10 बना डालेगा यहां पर क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, किसकी वजह से, दैट्स आल्सो, इट आल्सो रिक्वायर्स, दैट इज दिस लास्ट स्टेप, दैट्स फैक्टर 5th। फैक्टर 5th and the activated factor 10th are responsible in the intrinsic pathway for the formation of prothrombin activator। और ये क्या, तब और भी एक्टिव हो गया, इसके लिए हमें और भी एक चीज रिक्वायर है, दैट इज प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड्स एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट्स फैक्टर 3, ठीक है ना। क्या है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर अब बनेगा, इसके लिए हमें रिक्वायर चाहिए, फर्स्ट ये बनेगा फैक्टर 10, एक्टिव 10 की वजह से एंड फैक्टर 5th की वजह से, ठीक है ना। और हमें इसके लिए कौन सा फैक्टर चाहिए, दैट्स प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट्स फैक्टर 3। इसकी वजह से हमें यहां क्या मिल जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मिला, अब इंट्रिंसिक पाथवे में भी, यहां पर भी हमें प्रोथ्रोम्बिन मिला, यहां पर भी डिफरेंस इतनी थी, यहां पर सिर्फ ब्लड टच करता था कोलेजन फाइबर्स को, जो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर ऑफ थी, किसकी, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने यहां पर देखा था हमें कैसे मिल गया, क्या हमें मिला, हमें क्या मिला, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, जब टिश्यू इंजुरीड हुआ, फिर ये थ्रोम्बिन, सपोज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा, अगेन हम देखते हैं थ्रोम्बिन में, ठीक है ना, कौन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेप, ये स्टेप हमने पहले देखा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजिन को, किसमें, फिब्रिन में, ठीक है ना। ये क्या करेगा, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। अब हमें ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो मिल गया है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने देखा।
फिर इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट किया, फिर फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में किया। फिब्रिन जो था इनसॉल्युबल था, सॉरी ये था सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। अब ये क्या है, फिब्रिन इनसॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन, और ये क्या है, मोनोमर। ये फिब्रिन अब क्या बनाएगा, फिब्रिन पॉलीमर, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या मिला, फिब्रिन पॉलीमर। फिब्रिन पॉलीमर जब मिला, सपोज अब ये टिश्यू था, यहां से कट हुआ था, अब यहां पर क्या हुआ, जब बहुत सारे फिब्रिन पॉलीमर, सपोज व्हेन द फिब्रिन मेक्स शेयर द नेटवर्क, जब नेटवर्क ऑफ फिब्रिन पॉलीमर यहां पर बन जाएगा, फिर यहां पर जो बनेगा उसे हम कहेंगे थ्रोम्बोस, दैट्स क्लॉट हमें यहां पर मिल गया। इसकी वजह से अब क्या होगा, जो ब्लड था, ब्लड अब ऊज बाहर नहीं हो सकेगा, ठीक है। दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नाउ अब हम देखते हैं एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, जो कोएगुलिन को स्टॉप करवाते हैं, कोएगुलेशन को, वो हम देखते हैं। नाउ हम देखते हैं व्हाट्स एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट्स आर substance which stop the blood clotting। क्या है द सब्सटेंस एंटीकोएगुलेशन। कोएगुलेशन में हमने क्या देखा था, ब्लड क्लॉट बनता था। अब एंटी में वो सब्सटेंसेस होंगे, दैट्स प्रोटीन्स which stops the blood clotting। We have the first anticoagulant, that's natural type, which is present in our body, that's heparin। हेपारिन इट्स अ नेचुरल, अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए इट्स अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट इन बॉडी, दैट्स हेपारिन, ठीक है ना। सेकंड बात जो हेपारिन के बारे में है, सिक्रीटेड बाय, आपको पता ही होगा, इट्स सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स, ठीक है ना। मास्ट सेल्स सिक्रीट करेंगी, ठीक है ना, किसको, हेपारिन को। मास्ट सेल्स 3 सब्सटेंसेस दरअसल रिलीज करती हैं, उनमें से एक है हेपारिन। ये हिस्टामिन को भी, हेपारिन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स। ये क्या करती हैं, इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, जो हमारी बॉडी में था प्रोथ्रोम्बिन, दैट वाज द फैक्टर 3 जो था, टिश्यू थ्रोम्बिन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, यहां पर ये इंक्रीज करेगा एंटी थ्रोम्बिन को। ये एंटी थ्रोम्बिन क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन। ये सिंपली क्या करेगा, डिक्रीज थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। सिंपली हेपारिन के बारे में क्या बताया मैंने, इट्स नेचुरल सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स। ये क्या करेगा, ये इफेक्टिवनेस एंटी थ्रोम्बिन की सिक्रेशन को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। सेकंड जो हमारी बॉडी में एंटीकोएगुलेंट्स हैं, दैट्स होते नहीं है, दैट्स, और एक एंटीकोएगुलेंट है, दैट्स हिरुडिन। ये कहां से है, obtained from saliva ऑफ लीच, ठीक है ना। ये हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, saliva ऑफ लीच है। और एक भी हमारे पास है, दैट्स वारफेरिन। वारफेरिन कहां से सिक्रीट होता है, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। वारफेरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इनहिबिट्स फंक्शन ऑफ, दैट्स फैक्टर 2, फैक्टर it inhibits the formation of factor 2, factor 7th, factor 9th and factor 10th. Simply, warfarin inhibits the obtained from the firstly from plants. Secondly, it inhibits the formation of factor 2nd, 7th, 9th and the factor 10th. Fourth जो हमारे पास है anticoagulant, that's chelating agents.
चीलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं बाइंड्स, गेट बाइंड्स विद मेटल आयंस। चीलेटिंग एजेंट्स क्या हैं? ये बाइंड हो जाते हैं मेटल आयंस के साथ, देन फॉर्मेशन इनकी स्टॉप करते हैं। दैट्स हमारी बॉडी में ये हमें जो मेटल आयन होता है दैट्स कैल्शियम 2+2, ठीक है ना। हमारे पास कैल्शियम 2+2 है, इसको बाइंड करता है ये, और किसको करेगा ये? सोडियम ऑक्सलेट्स, पोटेशियम साइनाइड्स, ठीक है ना, सॉरी सोडियम साइनाइड्स, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, सोडियम साइनाइड्स एंड EDTA, दैट इज फुल फॉर्म जो इसकी है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। चीलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये बाइंड हो जाते हैं मेटल आयंस के साथ, फिर इनकी फॉर्मेशन को स्टॉप करते हैं। दैट्स फर्स्टली कैल्शियम 2+2, सोडियम ऑक्सलेट्स और सोडियम साइनाइड्स हैं, और क्या है? EDTA, दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और एक भी है हमारे पास, दैट्स lowering the temperature of blood, इसके साथ भी हो सकता है, दैट इज lowering the temperature of blood। ब्लड का टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं और कम टेम्परेचर पे ब्लड को रखें तो क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट्स बन जाते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स की फंक्शन ही क्या है? कोएगुलेशन को बचाना, ठीक है ना। दिस वाज द होल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। थैंक्स।